Now, so books of accounts, your books of accounts has been divided into a 4 parts. First is journal, second one is ledger, third is trial balance, and final account. This we have already discussed in the previous of the starting during the starting of our lectures. Now today we are going to study them one by one. First we will learn about journal, then we will be learning about a ledger, then we will be learning about the subsidiary books, then trial balance, and then we are going to a final accounts. So we will be just going into the series. ठीक है, एक one by one we will be learning about them. So the next topic, the first topic which we have to learn is journal. Now, is anyone aware what the journal means? You all have done this topic journal book in your 11th standard. Can anyone tell me what is journal? So class, in simple words, if I wanted to tell you, okay, what is journal? Journal is nothing but it is a daily book where you record all the daily transactions. जो भी रोज रोज के transactions करते हो, daily transactions, the first you record all the transaction in the journal book. So the word journal, see journal is, if you divide this word, तो जो जर है ना, JOUR, this jur is has been derived from a French word जिसका मतलब होता है day, which means the day. So अगर in short में अगर मुझे brief में अगर मैं बताऊं तो what is a journal? तो journal means a book to record the daily transaction. ठीक है, बिकॉज रोज रोज अगर बिजनेस में जाओगे तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, तो हम सबसे पहले जो बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं दैट इज अ जर्नल बुक. सो लेट्स गो टू अ मीनिंग पार्ट नाउ. Why it is essential in the business? Because as I told you before also, you all are not an Einstein. ना मैं हूं ना तुम लोग हो. We won't be able to remember each and every transaction which are taking place in a business. ठीक है, सो जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ इमीडिएटली वी रिकॉर्ड द वेरी फर्स्ट इन द जर्नल बुक. ठीक है, ना सो वी हैड अ सेपरेट बुक नोन एज अ जर्नल बुक फॉर दिस. एंड जर का मतलब होता है डे. ये वर्ड कहाँ से आया है? दिस इज अ वर्ड विच हैज केम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. ठीक है, it is nothing but it is just like a daily book. You all write a diary. There will be a students who used to write at the diary. ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें से होंगे जो डायरी लिखते होंगे अपनी. तो कैसे होता है, डायरी भी रोज रोज क्या किया क्या नहीं उसके डायरी लिखते हो. सेम वे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जो डायरी लिखते हैं दैट इज नथिंग बट इट इज योर जर्नल. ठीक है, सो नाउ जर्नल क्लास इज नोन एज योर प्राइम बुक. The journal as well as your subsidiary is known as a prime book, or you can say it is known as your original book. Now इसको prime book और original book क्यों कहा है? Because the transaction are first recorded over here. Transaction are first recorded over here. And it even and ये जो transactions record करते हो वो complete transaction record करोगे, वो permanently वो transaction record करोगे. Here you are recording with a date, with a number. Then with even in the journal you will have to write down the description of the transaction. तो journal से हमें date, वो जो transaction है वो कौन से दिन पर हुआ वो पता चलता है, उसका amount क्या था वो पता चलता है, कौन सा nature of transaction था, like it was a purchase transaction, it was a sale transaction, it was a expense का transaction. So we come to know about from the journal. तो as I told you what is journal in short, अभी अगर मुझे recall करना है तो so journal means a one book. It is nothing but it is a one book. ठीक है, and इवन जर्नल के साथ साथ जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी को भी हम है ना प्राइम बुक कहते हैं. नाउ सी स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट दे डू ना, जो छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है दे डू नॉट फॉलो अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. ठीक है, दे समटाइम्स फॉलो द सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. वो दोनों एस्पैक नहीं बनाते, वो सिर्फ कैश अकाउंट और अपने पर्सनल अकाउंट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं. जैसे वो पान वाला है, इफ यू गो टू अ पान वाला शॉप, क्या तुम लोगों को वहां कोई ऐसा एक प्रॉपर पर्सन मिलेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा जो दोज हु यूज्ड टू राइट डाउन द बुक्स? No. So what they used to prepare? They used to prepare a single entry bookkeeping system. They do not give the double entry bookkeeping system. They keep only the single entry. जहां उन लोग सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे एंड सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. सो सिंस द जो छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है दे विल बी गोइंग इन, दे विल बी रिकॉर्डिंग फर्स्ट एवरीथिंग इन द जर्नल. क्यों? क्योंकि उनके ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं. द ट्रांजैक्शंस आर वेरी फ्यू.
बट व्हेन यू गो टू अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में तो एक दिन में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होंगे. नाउ सपोज इफ यू गो इन द डिमार्ट, ठीक है, तो तुम लोग मुझे बोलो डिमार्ट में क्या दिन के 10 या 20 ट्रांजैक्शंस होंगे? यस क्लास, सिर्फ डिमार्ट में 10 एंड 20 ट्रांजैक्शंस होंगे क्या दिन में? ऑब्वियसली नो, देयर विल बी अ मोर देन 200 to 300 transactions which will be taking place in the DMart. तो वेर यू गो, जहां लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है, सो देयर वी डिवाइड दिस और दिस ट्रांजैक्शन दिस वे, वहां पर हम सारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो देयर वी डिवाइड दिस जर्नल इनटू द वेरियस बुक्स, दे आर नोन एज अ सब्सिडरी बुक्स. ठीक है, सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नोन एज योर स्पेशल जर्नल्स. दे आर ऑल्सो नोन एज अ स्पेशल जर्नल्स. तो जहां पर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, जहां ट्रांजैक्शंस कम होंगे, देयर दे विल बी प्रिपेयरिंग द जर्नल बुक. पर जहां ऑर्गेनाइजेशंस जहां दिन के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, तो उन लोग क्या करेंगे, दे विल बी रिकॉर्डिंग इन द स्पेशल बुक नोन एज अ सब्सिडरी बुक. ठीक है, दिस जर्नल विल बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस बुक्स and it will be a subsidiary book. So let's see the next part. सो देखो, जर्नल कैन बी डिफाइंड एज आई टोल्ड यू, छोटा छोटा बिजनेस है तो जहां कम ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड इन द जर्नल. वेर योर यू हैव अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, देन यू विल बी रिकॉर्डिंग. हर एक जर्नल को तुम लोग एक बुक में डिवाइड कर दोगे नोन एज अ सब्सिडरी बुक, इन विच यू विल बी रिकॉर्डिंग ऑल योर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. ऑब्वियसली जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है दैट विल बी फर्स्ट रिकॉर्डेड वेयर, it will be recorded in the journal. But remember one thing, in the journal you have to record each and everything in the chronological order, that is a date wise. Now for example, suppose मैंने तुम लोगों को बुक दिया, ठीक है, मैंने तुम लोगों को बुक दिया. अब बुक में मैंने ना क्या किया, नाउ दिस इज द टुडे इज 28th of October, करेक्ट. अब मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन 15th October का लिखा था. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आई रोट ऑफ एट 5th of October. फिर मैंने 12th का लिखवा. तो तुम लोग बोलोगे अरे कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यार, ये तो मैं कैसे ढूंढूं. अगर मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि जस्ट प्लीज गो एंड सी द ट्रांजैक्शन विच हैज टेकन प्लेस ऑन दिस 5 days बिफोर, तुम लोग बोलोगे अरे मैम ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही नहीं है, पहले हम उसको सॉर्ट करेंगे तब तो हमारे लिए वो इजी होगा. करेक्ट. तो द सेम वे योर जर्नल शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट शुड बी द डेट वाइज. ठीक है, ऐसे ही कैसे ही तुम लोग अपने हिसाब से कोई भी दिन का ट्रांजैक्शन, अब तुम लोगों को आज याद आया अरे मैं तो सेकेंड डेट का ट्रांजैक्शन तो लिखना भूल गया, तो आज 28th को तुम लोग सेकेंड डेट का ट्रांजैक्शन, आज के डे में तुम लोग सेकेंड का ट्रांजैक्शन का एंट्री पास कर रहे हो तो चलेगा? नो, इट शुड बी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, सो whenever you are preparing the journal, make sure that you prepare in the order wise, you prepare the in the date wise. Now as I told you, journal के दूसरा नाम क्या है? They are also known as a prime book, permanent book, or you can say even they are known as original book. Prime book, prime entry, original entry book, they are just the another name of the journal. It means one and the same. इनका अगर कोई तुम लोगों को बोल रहा है prime book, तो भी it is nothing but it is journal only. ठीक है, so these are the another names for the journal. अब उसको प्राइम बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जैसे हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, वी डायरेक्टली फर्स्ट रिकॉर्ड दिस इन द जर्नल. इसके लिए सबसे पहले जहां पर हम जो बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज नोन एज अ जनरल बुक. तो तुम लोग मुझे ये बताओ, इफ अगर हम प्राइम बुक, हाँ, या तो ओरिजिनल बुक हम अगर जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को कहते हैं, तो सेकेंडरी बुक कौन सा है? विच वन इज द सेकेंडरी बुक? So class, your secondary book or your principal book is your ledger. तो पहले ट्रांजैक्शन जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं एंड फ्रॉम देयर इट इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर, और यू कैन से फ्रॉम देयर इट विल बी गोइंग टू पोस्टेड इन द लेजर. द करेक्ट वर्ड विच वी यूज इज अ पोस्टेड. तो फ्रॉम जर्नल दिस ट्रांजैक्शन विल गेट पोस्टेड इनटू द लेजर. ठीक है, सो लेजर इज नोन एज योर सेकेंडरी बुक. अगर प्राइम बुक हम इसको ये जर्नल को कहते हैं, तो सेकेंडरी बुक किसको कहेंगे? सेकेंडरी बुक हम लेजर को कहते हैं. सेकेंडरी बुक और यू कैन इवन से द प्रिंसिपल बुक. तो अगर जर्नल अच्छे से मेंटेन किया होगा तो लेजर में इजीली सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर पाओगे. ठीक है, यस, एनी डाउट टिल योर क्लास? So as I told you, I gave you the example like you all write your personal diary. So journal accounting में
दिस इज नथिंग बट दिस इज अ डायरी विच दे यूज टू राइट, बट वो डायरी में दे डोंट राइट देयर पर्सनल थिंग्स. व्हाट दे राइट देयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ठीक है. सो जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस. सब जो भी है एक प्लेस पर हम रिकॉर्ड करते हैं. देयर यू हैव अ डेट, यू हैव अ डेबिट कॉलम, यू हैव अ क्रेडिट कॉलम, देन यू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ट्रांजैक्शन. ठीक है. नाउअडेज तो चलो एवरीथिंग इज बीन रिकॉर्डेड थ्रू द सॉफ्टवेयर. पहले ना इवन द जितने भी बैंक के ट्रांजैक्शन होते थे ना दिन में, भले 300 ट्रांजैक्शंस क्यों ना हो, 200 ट्रांजैक्शंस क्यों ना हो, दे यूज्ड टू राइट इट डाउन मैन्युअली. हाँ क्लास, इतना बड़ा रजिस्टर होता था, दे यूज्ड टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग मैन्युअली. बट दिस डेज अब तो सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया है. वी हैव अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, वी हैव अ टेली इवन. तो अब सब कुछ क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होने लगा है. Now what are the steps? So first we have to write down the date. I will be showing you the format as well. तो सबसे पहले हम वो ट्रांजैक्शन की डेट को रिकॉर्ड करते हैं. देन फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन के कौन सा ट्रांजैक्शन है. देन वी विल बी राइटिंग डाउन द एंट्री डेबिट एज वेल एज उसका डेबिट एंड उसका अमाउंट. वो ट्रांजैक्शन में कौन सा आइटम क्रेडिट हो रहा है एंड देन उसका अमाउंट. And last you have to give the narration. Now what is a narration? Narration is nothing but it is a description of the transaction. Now for example, if I'm telling you that I have purchased 5,000 का goods from Ganesh, तो ये मेरा कौन सा ट्रांजैक्शन है, तो दिस इज माय ट्रांजैक्शन, परचेज का ट्रांजैक्शन. तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी बीन goods purchased from Ganesh. So remember one thing, your narration start with the word been, BEING. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर. तो व्हाट इज अ नरेशन? नरेशन इज नथिंग बट इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ट्रांजैक्शन. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट योर फॉर्मेट इज. नाउ सबसे पहले तुम लोग जर्नल एंट्रीज किसके बुक में बना रहे हो. इन द क्वेश्चन यू विल बी हैविंग अ नेम ऑफ द पर्सन या तो नेम ऑफ द एंटरप्राइज will be given in the question. So you will have to first write down that journal entries in the book of. Now suppose if I'm telling you that this is in the books of XYZ, yeah, so I will be telling you it is in the books of PQR. So here you will be writing down the name of that company, the name of that organization. अगर किसी person के book का आप बना रहे हो तो उसका नाम लिखोगे. Then the very first column will be your date column, and as I told you, it should be in the chronological order. Second number, serial number 1, matlab entry number 1 2 3 4 you will be giving the serial number. Then you will be having a particulars. Here you write down the debit and the credit of the transaction, and even uske niche tum log narration likhoge, and your narration will get start from the bean word. Then you have a LF. Now what you mean by LF class? LF का मतलब होता है लेजर फोलियो. Now normal meaning of the folio का मतलब होता है पेज नंबर. What is the full form of LF? LF is nothing but ledger folio. Here the folio means a page number. ठीक है. तो अभी सिर्फ तो फिर together when I start ledger folio, तो together it means a page number of the ledger. तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रांजैक्शंस जर्नल में लिखते हैं, देन वी पोस्ट इट इनटू द लेजर. तो जब हम जर्नल में लिखेंगे ना क्लास, एट दैट टाइम वी वोंट बी राइटिंग डाउन, वी वोंट बी गिविंग द नंबर्स हियर. जब हम ये एंट्री लेजर में पोस्ट करेंगे तब हम इसको नंबर्स देंगे. एट दैट टाइम वी विल बी राइटिंग डाउन द पेज नंबर. ठीक है. तो सपोज अब मैंने यहाँ पर परचेज की एंट्री पास की, तो ये परचेज की एंट्री लेजर में कौन से पेज नंबर पर है, दैट पेज नंबर विल बी रिटर्न ओवर हियर. ठीक है. से दैट एंट्री यू हैव रिटर्न इन द पेज नंबर 2, तो यू विल हैव टू राइट डाउन ओवर हियर पेज नंबर 2. ठीक है. सो पहले जब हम जर्नल बनाते हैं तब हम ये लेजर फोलियो के जो पेज नंबर्स है तब नहीं लिखते, पर जब हम लेजर में पोस्ट करते हैं ना, व्हेन वी पोस्ट द अकाउंट्स टू व्हेन वी गिव द टू इफेक्ट्स देयर, तब हम इस ये कॉलम में पेज नंबर एंटर करते हैं. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, this page number is always written normally, it has been written in with a red ink. नॉर्मली ये पेज नंबर्स जो होते हैं ना वो रेड इंक से लिखा जाता है. ठीक है. देन वी हैव अ डेबिट रुपीज एंड वी हैव अ क्रेडिट. अगर डेबिट में जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है वो डेबिट लिखो, क्रेडिट लिखो, एंड डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल. डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट. देन next is what our ledger is coming now.
So first, before starting with the ledger, you all tell me just whether you have any of the doubt. Do you have any of the doubt in the journal? Now, as I told you, कि journal is your prime book, correct? Prime book, or you can say the original book. Why? Because there you are recording the transactions first in the journal and then you are writing down in the ledger, correct? So secondary book किसको कहेंगे? Secondary book we will be telling to the ledger. So ledger is also known as a secondary book. It is also known as a book of final entry. ठीक है? It is also known as a book of final entry. Then it is also known as a principal book. ठीक है? I have given you the three names. I have given you the three names. Again, I am repeating those. Secondary book, book of the final entry, and the principal book. ठीक है? अब देखो, as we have already learned कि अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग प्रोसेस में कैसा होता है, we used to first record, then we used to summarize it up. ठीक है? तो दिस इज अ प्रिंसिपल बुक. अब देखो, हर एक जितना भी हमने जो भी जर्नल बनाई, वो जर्नल से हमें पोस्ट करना है लेजर में. सो हियर वी आर गोइंग टू समराइज ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस इनटू द डिफरेंट लेजर्स. ठीक है? सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज अ प्रिंसिपल बुक विच इज रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन. या तो हम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट भी बनाते हैं, कोई डेटर क्रेडिटर का अकाउंट, आउटस्टैंडिंग कुछ हो तो उसका लेजर अलग से बनता है. देन वी प्रिपेयर एनी पर्सनल अकाउंट्स ऑल्सो. देन वी प्रिपेयर रियल असेट्स के अकाउंट्स, रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर, कैश बैंक अकाउंट बनेगा, एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी प्रिपेयर. सो ऑल विल बी रिकॉर्डेड इन द समराइज फॉर्म. तो हम सबसे पहले क्लास रिकॉर्डिंग कहाँ पर करते हैं? वी डू द रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का मतलब होता है फर्स्ट वी प्रिपेयर द जर्नल, इन जर्नल वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. देन सेकेंड स्टेज इज समराइजिंग स्टेज. Here say if it is written summarizing form. तो summarizing मतलब जो journal में लिखा वो सारा कुछ summarization is done in the ledger, correct? And third stage you have an analysis stage where you will be preparing your final accounts like trading account, profit and loss account and balance sheet. So this three you have to remember very carefully. हाँ, journal में हमने recording सीखा, ledger में हमने summarizing सीखा, और जब हम फाइनल अकाउंट्स पर जाएंगे, we will have to prepare a trading account, profit and loss account and balance sheet. There we are going to analyze the transactions. ठीक है? So ledger contains all your accounts. It contains all the set of the accounts. It will be a real account, it will be a nominal account as well as the personal account. तो सारे अकाउंट, सारे सेट ऑफ बुक्स आर बीन रिकॉर्डेड ओवर हियर. सो ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? अकाउंट वाइज रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन इज बीन केप्ट. कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? वी कीप द अकाउंट वाइज रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन. ठीक है? ईच अकाउंट इज केप्ट ऑन द सेपरेट पेजेस और यू कैन से ऑन द सेपरेट फोलियो. ठीक है? हर एक अकाउंट एक सेपरेट पेज या तो सेपरेट फोलियो. फोलियो एज आई टोल्ड यू पेज नंबर. ठीक है? क्लियर? एनी डाउट? नो? फाइन. अब देखो इसका आगे का पढ़ते हैं. नाउ दिस इज व्हाट द फॉर्मेट ऑफ द लेजर इज. नाउ सबसे ऊपर होता है टाइटल. Here you have to write down the title. Now what is the title? Title is the head of the account. Title is the head of the account. You can say यहाँ हम account का नाम लिखते हैं और you can say the name of the account. For example, if you are making the expense account, तो तुम लोग यहाँ पर heading दोगे expense account. Suppose if you are making a bank account, तो here you will be giving the heading bank account. अगर परचेज लिख, अगर तुम लोग सपोज कोई और अकाउंट बना रहे हो तो तुम लोग यहाँ पर उसका नाम लिखोगे. तो हेड ऑफ द अकाउंट का मतलब क्या होता है? यू यूज टू राइट डाउन द नेम ऑफ दैट अकाउंट. देन यू हैव अ टू साइड्स इन दिस. योर लेजर इज डिवाइडेड इनटू अ टू पार्ट्स, डेबिट साइड एंड अ क्रेडिट साइड. ठीक है? इट इज डिवाइडेड इनटू अ टू साइड्स. वन इज डेबिट साइड, अनदर वन इज क्रेडिट साइड. डेबिट साइड यू स्टार्ट राइटिंग विथ 2. ठीक है? डेबिट साइड पर हम कौन से वर्ड से स्टार्ट करते हैं? राइटिंग 2 वर्ड से. और क्रेडिट साइड में हम कौन से वर्ड से लिखते हैं? वी यूज द वर्ड बाय व्हाइल राइटिंग इन द क्रेडिट साइड. ठीक है? सो फर्स्ट अ डेट, जो दिन पर जर्नल का जो दिन पर डेट होगा वो डेट सबसे पहले यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे. फिर जो अगर वो डेबिट होगा ट्रांजैक्शन में, देन यू विल बी राइटिंग डाउन ओवर योर 2, देन नेम ऑफ दैट अकाउंट. जर्नल
अभी देखो, मैं यहाँ पर जहाँ ये जो पेज नंबर पर ये अकाउंट मैं बनाऊंगी, आई विल बी राइट गिविंग दैट पेज नंबर ओवर हियर एज वेल एज इन द जर्नल बुक. सो जब हम वहां पर बनाते हैं हम लिखते हैं लेजर फोलियो. व्हाई? बिकॉज जर्नल में वी यूज टू राइट डाउन द लेजर का पेज नंबर, एंड व्हेन यू प्रिपेयर द लेजर यू राइट डाउन द जर्नल का पेज नंबर. के उधर कौन से पेज नंबर पर लिखा था वो यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे. ठीक है. Then you have a amount ka column. Same way, what you are writing in the debit side, the same will be written on the credit side. ठीक है. So here we have a two part. Don't forget that debit side will be started with the word to and credit side will be starting with the word by. So then what you will be doing over here? Here you will be balancing the accounts. हम यहाँ पर अपने अकाउंट्स को बैलेंसिंग करने वाले हैं. सो बैलेंस ऑफ अकाउंट्स मीन्स फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट्स. ठीक है. हम लेजर में क्या करते हैं? वी बैलेंस आर अकाउंट्स. कोई कोई अकाउंट टैली हो जाता है और कोई कोई अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा. So what I mean by balancing of an accounts, it means the finding the difference between the total of the debit and the credit side. Clear? Now how this posting is been done? जो मैंने बोला वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. From journal it is posted to the ledger. Then posting is made on the debit side of the account, which जो journal में debit हुआ होगा, which is debited, and also to the credit side of the account, which is credited. Debit side पे लिखोगे word to, whereas on the credit side it will get start with the word by. ठीक है. नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड एंड नेम ऑफ द डेबिट अकाउंट इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड. जब हम करेंगे तब वो ये और क्लियर हो जाएगा. एंड देन एज आई टोल्ड यू वी डू द बैलेंसिंग ऑफ बोथ द साइड्स. समटाइम्स योर अकाउंट्स गेट टैली, और अगर टैली नहीं हुआ तो हम डिफरेंस अमाउंट फाइंड आउट करते हैं. पहले ये देखते हैं कि विच साइड इज हायर, डेबिट साइड इज हायर कि क्रेडिट साइड इज हायर. ठीक है. सो जो साइड अगर बैलेंस कम होता है वो साइड हम वहां उसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं या तो हम उसको क्लोजिंग फिगर बोलते हैं. So either you write down the balancing of an account or a closing of an account. Now this debit side, if the debit side of the account is heavier than the credit side, then it is known as a debit balance. Obviously अगर डेबिट ज्यादा हुआ क्रेडिट से तो हम उसको डेबिट बैलेंस कहते हैं, और अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ डेबिट से तो वी टेल इट एज अ क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. दिस इज व्हाट अ टाइप ऑफ द बैलेंस इज. If debit is more than credit, debit balance. If a credit is more than a debit, then it will be known as a credit balance. ठीक है. This you have to just learn from the theoretical point of view. Now, before going to the trial balance, we will have to learn about certain things about the subsidiaries book as well. ठीक है. But before moving to a subsidiary book, you just tell me if you have any of the doubt, anyone is finding any of the difficulty in this journal or ledger, ऐसा कुछ है जो नहीं समझा है.